Welcome to The Boss. I'm Amir Qureshi. Thank you for joining us for yet another exciting episode of The Boss. आज हमारे गेस्ट हैं सैयद मोहसिन अहमद, the CEO of Pakistan Microfinance Network. We're going to have a very interesting conversation with him. हम उनसे बात करेंगे about the sector. ये जो microfinance sector है उसके बारे में बात करेंगे. We'll also talk to him about his professional journey. वो 20 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं. How has the sector changed? How has it evolved? And we'll talk about some of the common misconceptions about the microfinance sector. So, let's go and talk to Mohsin Ahmed from Pakistan Microfinance Network. Assalamu alaikum, Mohsin. Welcome to The Boss. Walaikum salam. Thank you for inviting me. It is a pleasure. It's good to have you on The Boss. There's a lot we can talk about. बहुत कुछ है बात करने के लिए. But let's go back a little bit. आपको इस सेक्टर में तकरीबन 20 साल हो गए. You've been in this sector for a long, long time. How has this sector evolved and how has it been for you personally in terms of your own professional journey? Okay, ji, thank you so much. So I would actually say it has been now 26. This is my 26th year. Wow, And that's before amazing. that, I was with a non-bank NGO which was doing microfinance. So 4 years of on-field experience also. But I was looking at the finances, so Almost 30 not on the years operation. So in yeah, the so sector. almost 3 decades with Wow, the that's a microfinance lot. sector. And I can the journey I saw in front of me the way the sector was and how it has evolved. So from a very typical industry like anywhere else in the world, except for I think in Latin America, this was an industry which started with an NGO movement, very focused on giving credit, mobilizing communities, building their savings, and then giving them credit. And credit even at no price. But then the sector evolved. The sector realized that it needs to grow, and our current estimates are that the potential market is 40 million. But going back 30 years, उस वक्त इतने potential market नहीं थी, but people knew that there is poverty. There are people who are not taking any financial services from the banks because banks are not catering to this particular segment of the market. तो उसको हमने अगर serve करना है, so then we have to reach scale, and that is only possible if we are sustainable entities. So now from a very charity based donor driven sector, we are now a sector which makes surpluses, makes profit, and which attracts private capital, both equity and debt. अब आपके सेक्टर में अगर देखें, since your organization represents the sector, इसमें बहुत सारे not for profit organizations हैं, अब तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, so it's quite a diversified sector now. बहुत चेंज आ गया पिछले चंद सालों में. आई एग्री विद यू जी. सो सिर्फ ये नहीं है कि इस सेक्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट सेक्टर के दरमियान डाइवर्सिटी है, बट इसके अंदर ये जो नॉन बैंक्स भी हैं और डिपॉजिट टेकिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं. सो बोथ वन इज रेगुलेटेड बाय द SECP फॉर द नॉन बैंक्स एंड द अदर इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक विच कैन टेक डिपॉजिट, which is the microfinance banks. And within these two subsectors, there is also diversity. So there are, within the non-banks, there are the rural support programs and there are the specialized microfinance institutions. तो इस सेक्टर में आपने in your 20 plus years क्या changes देखी हैं? What are some of the positive developments जो आपने देखी हैं अपने जी, so one of them is that we have been able to attract private capital. So whether that is equity and equity both from the local side, from the banking industry, but also from the international side. So from at a time when there was no equity or very limited equity investment coming into Pakistan, we were able to attract, I think, between the different microfinance banks close to 100 or 150 million dollars in the last 5 to 10 years. And this includes players like Vion, Telenor, Alibaba, no, not Alibaba, but Ant Financials, and also like commercial banks in the form of UBL investing in Khushali. We have HBL not only investing in HBL at that time first microfinance bank, but now giving them the brand of HBL, so they are not the HBL microfinance bank, so mainstreaming the sector. So the one big change that has happened is that the sector has been mainstreamed and it is now part of the overall financial industry in the country. और इसमें काफ़ी as you were mentioning काफ़ी professional organizations आ चुकी हैं. HBL, UBL is an investor. लेकिन when the sector first started, और अगर हम बांग्लादेश की तरफ भी देखें, the expectation was कि it was going to help us alleviate poverty from Pakistan. अगर बांग्लादेश का मॉडल देखें तो it was very successful. मगर इतना अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान still has a very high percentage of our population living in poverty. तो to what extent has
this sector helped alleviate poverty? अच्छा उस चीज़ में मैं मेरा रिस्पॉन्स जो होगा ना आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज जो सेक्टर का मिशन है ना उस पर तो आई थिंक वी आर स्टिल देयर वी आर एंड द मिशन इज दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद द क्लाइंट विच इज नॉट बीइंग गिवन फाइनेंशियल सर्विसेज बाय द फॉर्मल बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आइदर डायरेक्टली गॉन एंड स्टार्टेड सर्विंग दैट सेगमेंट ऑफ द पाकिस्तानी मार्केट जो कि हिंटरलैंड्स में रूरल एरियाज में माउंटेन एरियाज में डेजर्ट एरियाज में पेरी अर्बन एरियाज में KLI कराची लाहौर इस्लामाबाद से हट के उन इलाकों में है एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू सर्व देम वेदर दैट इज अ क्रेडिट सर्विस और एन इंश्योरेंस सर्विस वेदर दैट इज डायरेक्टली और दैट इज थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग और एजेंट मॉडल बैंकिंग so in terms of the mission and vision we are serving the client which is supposed to be for the microfinance sector अब उसके अंदर आप nuances कह सकते हैं कि initially when microfinance started we were supposed to lend totally unsecured. Now over the last few years we take some sort of security whether that is in the form of post dated checks or whether it is in the form of hypothecation of inventory or whether that is in the form of gold, but these are all debatable things also because in the sector with the diversity we have that in our own board meeting or members meeting different players accuse other that this is not right, we need to continue with unsecured lending. So that debate continues, which is the sense of being a sector and an organization which is representing to work with the excluded and the unbanked segment of the society. ये जो segment है जिसकी आपने भी बात की unbanked and जो excluded है, let's say more vulnerable population जो पाकिस्तान की है वो आपके जो members हैं उनके clients होंगे. तो one of the criticism जो आपके सेक्टर पे अक्सर किया जाता है, the interest rates are just too high. These are people who can least afford it, yet they're expected to pay 30% interest sometimes. And how do you justify or how does your sector justify such? Okay जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमसे अक्सर ये सवाल किया जाता है सो उसके रीज़न ये है जी बिकॉज वेरी सिंपली बिकॉज दीज आर स्मॉल टिकट आइटम्स. हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इट वाज अराउंड अ लोन ऑफ 20,000-25,000 मैक्स ऑन एवरेज. अब आजकल जो हमारा एवरेज लोन साइज है फॉर अ जनरल माइक्रो फाइनेंस लोन इज अराउंड 75,000 to 100,000 रुपीज बट देन विच इज फॉर हाउस होल्ड लेवल माइक्रो इंडिविजुअल्स. बट then also there are segments as the sector has diversified its credit product portfolio. We are also lending for housing, low cost housing. We are also lending for low cost private education. We are lending for micro and very small enterprises. So for them the loan sizes have gone up. So that is between $500,000 to 3 million or 5 million K for low cost housing. So that's the spectrum that we serve. But the interest for a general microfinance loan जो कि आप यानी कह लें around between 75,000 to 100,000 rupees है, that has to be on the higher side like any credit card की lending. So it is both unsecured and it is low ticket. It is a small ticket item, and so the cost structure on that. So rather than us giving $1 billion to one corporate, we are giving or 500 million rupees to a medium enterprise. We are giving $1 billion to more than 10,000 or 15,000 borrowers. So we have to do their proper due diligence. We have to ensure that and given that this is banking at the doorstep, because relationship banking is very important for microfinance because the cost and the risk structure is such that we have to manage that. If we are not having direct links with the client, which increases costs, then our risk goes up. So what is critical is that we have a relationship with the clients. We are there जब उनके घर फौदगी होती है या जब उनके यहाँ खुशियाँ होती हैं, our people have to be there, our members and their staff has to be there, so that it's not just transaction that we are doing but the relationship we are building. So इसकी cost, operational cost structure high होता है. But I am जी please जी आप जिस तरह कह रहे थे कि lot of the lending is unsecured, तो obviously interest rate ज़रा ज़्यादा ही होता है. The closest thing you can compare it to is your credit cards banks देते हैं, उसमें भी interest rates तो ज़्यादा हैं. लेकिन आपके ही सेक्टर में भी find certain organizations जो 0% पे पैसे लेंड कर रही हैं. हाउ आर दे एबल टू डू दैट? ठीक है, मैं पहले तो आपको इसी का जवाब दे दूं ना कि 0% पे जो कर रहे हैं, देखें 0% इज बीइंग चार्ज टू द क्लाइंट्स, बट दीज इंस्टीट्यूशंस हैव टू सर्वाइव. उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी है, ऑफिसेज भी हैं, स्टाफ भी है, सो दे हैव टू गेट मनी समवेयर टू टेक केयर ऑफ द सैलरी कॉस्ट एंड द HR कॉस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनके लॉसेज भी होते हैं. तो दीज काइंड ऑफ एंटिटीज अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दे गेट बोथ
some operating expense subsidy and some sort of loan loss subsidy from both the federal and the provincial government. So अब उनके जो interest rates हैं, they are between यानी operational costs are on the lower side, and so वो मैं मानता हूँ कि operational costs वो low कर लेते हैं, या they are able to between so that this so मैं आप शायद आपको ये भी define करूँ कि the target markets are also very different for a interest free loan program and a program जहाँ पे कि हम sustainable microfinance कर रहे हैं. मैं so इसको आपको एक strata में डाल देता हूँ. So we have the National Socio-Economic Registry in Pak, NSER. ये 0 से 100 तक लोगों को रैंक करती है in terms of their wealth indicators, और उसमें different indicators हैं. ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग इसके अंदर काम हुई हुई है. So जो 0 से 19 या 20 है, that is where BISP clients are, people who are require income support, so they get complete subsidy from the government. जो टिपिकल माइक्रो फाइनेंस था वो 35 और उससे ऊपर, so 35 से 60 के दरमियान वर्क करता था. तो दीज वर पीपल हु वर इकोनॉमिकली एक्टिव, सो वो कुछ बिजनेसेस करते थे, उनके पास स्किल्स थी, उनके पास लाइवलीहुड्स थी, लाइफ स्टॉक्स थी, तो क्रॉप्स थी, सो दे वर एबल, सो वी यूज्ड टू प्रोवाइड देम लोन सो दैट वो अपनी बिजनेसेस को ग्रो कर सकें, या राइट टाइम पे उनको हम इनपुट के लिए लोन प्रोवाइड कर सकें. तो वो सेगमेंट वाज एबल टू रीपे अस. फिर एक सेगमेंट है जो ये 20 और 35 के दरमियान है. सो दिस इज द सेगमेंट विच जहां पे के लार्जली इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोग्राम्स चलते हैं, विच मेक सेंस कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो टारगेटेड भी सही तरह से हो. तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि ऐसे क्लाइंट को हम सब्सिडी दें जो अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकता है और उससे रीपे कर सकता है. तो ये इस तरह से इसको आप कह लें ग्रेजुएशन मॉडल के अंदर हमने, एंड दीज आर ग्लोबल एक्सपीरियंसेस जहां पे के इंस्टीट्यूशंस लेके गए हैं. सो इस तरह से टारगेटेड सब्सिडी गवर्नमेंट की है बिस्प के लिए, एंड देन सेगमेंट विच इज अबव BISP but below the typical microfinance client. Okay, so किसी हद तक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड देयर बीइंग कवर्ड जी, बाय जी, बिल्कुल. एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड इसीलिए इनको फिर इंटरेस्ट इतना नहीं चार्ज करना पड़ता, और दे कैन गेट अवे विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट. लेकिन उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी, जी, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी लो होता है. सो दैट यू आर राइट. तो अगर हम इस पे बात करें, जो लोन्स दिए जाते हैं आपके सेक्टर में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जो वल्नरेबल किस्म के लोग हैं जिनकी इनकम इज अ लिटिल बिट अनसर्टेन एटसेट्रा, तो why is it or how is it कि जो आपका repayment rate है जो कोट किया जाता है by your sector generally is well into the 90s, 90% recovery हो रही है. Are you people or are your members that good at collecting debts, or is there some creative accounting जो होती है? अच्छा, मैं इसका आपको, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है आपका. सो मैं इसमें आपको ये रिस्पॉन्स दूंगा जी कि अदर देन द फैक्ट कि कोई 2-3% शायद हैबिचुअल या रॉन्ग सिलेक्शन, या बिकॉज हाई ग्रोथ में इंस्टीट्यूशन चले जाते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो चांस है कि 2-3% आप लूज कर लें. बट एक नॉर्मल जिस क्लाइंट के साथ हम डील कर रहे हैं उसके लिए व्हाट इज़ वेरी क्रिटिकल इज कि हम उसको जब लोन दे रहे हैं वो उसकी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहा है, वो एसेंशियल सर्विसेज को सपोर्ट कर रहा है. तो वो एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. वो ये है कि अगर आप सेक्टर के जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं ना, वो अगर हम उनको लेंड नहीं करेंगे या वो हमें डिफॉल्ट करके, क्योंकि अब तो क्रेडिट ब्यूरोज भी हैं, सो उनकी इंफॉर्मेशन भी ब्यूरोज के अंदर आ जाती है. सो देन नो, इफ द सेक्टर डजंट गिव देम लोन, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ रीस्टार्टिंग देयर लाइवलीहुड्स. तो अदर देन द एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें कि यानी आजकल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 अगर आप देखें तो कोविड आया, कोविड के बाद सुपर फ्लड्स आए, फिर बीच में पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक टर्मोइल आया, उसी के बीच में 2025 के भी फ्लड्स आए, फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी शिफ्ट हुई गवर्नमेंट्स की. तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ है इसमें. तो उसकी वजह से ये जो एक्सोजेनस फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से ज़रूर मैं यानी पोर्टफोलियो में क्रेडिट वेव्स आई हैं. बट द बेस्ट वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट क्रेडिट वेव इज दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू आवर क्लाइंट्स. बिकॉज एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हम लोन एक फैक्ट्री को नहीं दे रहे, हम लोन एक मशीनरी को नहीं दे रहे, हम लोन एक ऑटोमोबाइल का नहीं दे रहे, हम एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं जिसने अपनी लाइवलीहुड उससे चलानी है. तो वो उसकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो सकती. आई एम सिट्रस पेरेबस, आई एम रिमूविंग समवन हु इज
बाय नेचर अ डिफॉल्टर या हैबिचुअल डिफॉल्टर, मैं उससे हटके आपसे बात करूंगा, वो आपको रीपे करेगा। तो आपने उसको वो स्मूथ आउट करनी होती है वो टाइम, जब वो इस एक्ट ऑफ गॉड या कुछ एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से उस रिस्क में चला जाता है। तो वो बेस्ट उसका तरीका ये होता है कि रीशेड्यूलिंग की जाए एंड रीफाइनेंसिंग की जाए इन लोगों की, एंड देन दे आर एबल टू कम बैक ऑन ट्रैक। सो जब ये सारा कुछ किया जाता है किसी हद तक इट हेल्प्स टू गिव यू द सॉर्ट ऑफ एक्सेलेंट नंबर्स जो आप लोग प्रमोट करते हैं आपके मेंबर्स के 95% प्लस फॉर एग्जांपल रिकवरी हो रही है। लेकिन जनरली स्पीकिंग इट्स वेल एक्सेप्टेड कि ज़्यादातर लोग जो आप कह रहे हैं फॉर रीजंस दैट यू मेंशन पीपल एंड अप पेइंग लोन्स, मतलब दे डोंट गो इनटू दिस अग्रीमेंट विद द इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग और डिफॉल्टिंग, जिस तरह आपने से कहा। यू आर राइट जी। तो लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ बैंकिंग जो माइक्रो फाइनेंस है, डिपॉजिट्स। इंक्रीजिंगली ये जो लोग हैं इनको बैंकिंग सेक्टर में लाने के लिए आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आर नाउ हैप्पी टू टेक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। कईयों के पास काफ़ी सब्सटेंशियल डिपॉजिट बेस भी आ चुका है। हाउ डू यू थिंक दैट इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस एंड हाउ इज़ इट प्रोग्रेसिंग सो फार? जी, सो मैं आपको ये बता सकता हूँ जी, फ्रॉम अ टाइम इन 2001 जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आया, तो इनिशियली मैं आपको कहूँगा फर्स्ट 10 years में द डिपॉजिट साइड वाज ऑन अ वेरी स्लो ट्रैक, बट आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोइंग अप नेचुरली। एक मार्केट में जहाँ पहले से ही HBL है और नेशनल बैंक है, और उस ज़माने में तो सिटी भी था और एमिरेट्स बैंक भी था, तो लोग तो अपने डिपॉजिट उधर रखते थे। अब ये नए नए नाम आए, तो उन नामों और तो उन नामों को अपना ब्रांड बिल्ड करना था। तो आज अगर आप मुझसे पूछें तो हमारा ओवरऑल सेक्टर का जो लोन बुक है दैट इज अराउंड क्लोज टू 870 बिलियन रुपीज, बट जो हमारी डिपॉजिट बुक है दैट इज 950 बिलियन रुपीज। Okay. सो आवर डिपॉजिट्स आर ऑलमोस्ट टचिंग $1 trillion राइट नाउ। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा, जो एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है, जो आई हैव, बिकॉज आई ऑल्सो एम ऑनररी CEO ऑफ द ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क, सो हमारा कंट्री लेवल नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो मैं जब देखता हूँ अदर कंट्रीज़ में, स्पेशली बांग्लादेश में या इंडिया में, तो वहाँ पे जो उनकी ग्रोथ है ना, स्पेशली बांग्लादेश में, वो उनके जो डिपॉजिटर्स आप कह लें ना माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनसे भी उनकी डिपॉजिट बेस बहुत बड़ी बनी हुई है। तो हमारी इस वक्त जो डिपॉजिट बेस है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड माइक्रो इंडिविजुअल, बट अ वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स या कैप्टिव डिपॉजिटर्स। सो हमें किसी तरह से काम करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने जो हमारी क्रेडिट साइड के ही जो क्लाइंट्स हैं उनकी हम डिपॉजिट को बिल्ड कर सकें। और उसमें जो हमारी स्टडीज़ हैं, जब हमने इंश्योरेंस के से रिलेटेड की थी, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विच जो कि रिकमेंडेड है वो ये है कि आप लाइफ किस तरह से ऐसी इंश्योरेंस या सेविंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो लाइफ साइकिल इवेंट्स को कवर कर सकें। से फॉर एग्जांपल बच्चे की तालीम, बेटी की, एंड आई डोंट वांट टू बी जेंडर इनसेंसिटिव, बट हमारी सोसाइटी के अंदर बच्ची की शादी, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आ गई, तो हमारी जो डिपॉजिट साइड पे सेविंग की प्रोडक्ट्स हैं और इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स, ये आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से अब इवॉल्व होती जा रही हैं, एंड सो दे आर केटरिंग टू दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर क्लाइंट्स। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग में तो बहुत अरसे से हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड एक्सेट्रा, लेकिन उनको आप के सेक्टर में भी ज़रूरत तो है। ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एन एक्सीडेंट, कोई गॉड फॉरबिड कोई ऐसी मेजर चीज़ हो जाती है, एंड देन लाइफ इवेंट्स जिस तरह से आपने कहा है। तो ये अगले चंद सालों में डू यू थिंक देयर विल बी मोर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन योर सेक्टर, बिकॉज ट्रेडिशनली ज़रा स्लो टू मूव है? जी बिल्कुल, आपने जो ये स्लो मूव कहा ना, ये आपने बड़ा ये वो सवाल है जो मैं और मेरे मेंबर्स के दरमियान भी अक्सर होता रहता है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे इस वक्त कोई अराउंड 13 मिलियन एक्टिव बोरोअर्स हैं। इफ़ आई टेल यू अबाउट द साउथ एशियन कंट्रीज, सो इस वक्त इंडिया के around 100 million active borrowers hai. So okay, they have a population of 1.5 billion, but they started around the time we started in 2001. हमारी potential market जो है, जो हमने आज से 5 साल पहले calculate की थी, that was around 40 million, but at that time the population was maybe 210 million, अब वो 250 million है। उस वक्त poverty भी कम थी, इस वक्त poverty भी ज़्यादा है। तो हम, यानी हमारी potential मेरे ख्याल से 50 million के करीब होनी चाहिए। बांग्लादेश which has a population smaller than आज, उसके टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बोरोअर्स आर क्लोज टू 36 मिलियन।
तो यानी वी हैव अ ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल. तो वो स्लो की बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी. सो द वे फॉरवर्ड आई थिंक, मैं इन टर्म्स ऑफ चैलेंज, इफ वी आर एबल टू एड्रेस दिस जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का चैलेंज, एंड वी आर टॉकिंग टू द सेंट्रल बैंक ऑन दिस, वी आर टॉकिंग टू SCCP on this, both who are our regulators, and State Bank especially, who is the, I would say, the steward of the sector. उसने leadership की है sector के अंदर. तो हम इनसे in touch हैं, and different programs are coming in, whether from the World Bank or ADB, and then we talking to the NDMRF, the National Disaster Risk Management Fund. So there are, we can see के puzzles के मुख्तलिफ pieces are coming together, जिसमें के हम climate के effect को through climate finance या थ्रू इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स सपोर्ट अवेलेबल हो रही है ग्लोबली भी एंड लोकली भी, ताकि हम इसको एड्रेस कर सकें ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स. तो अगर इस एक्ट ऑफ गॉड को अगर हम किसी तरह से मैनेज कर सकें, देन आई थिंक आवर फोकस शुड बी वेरी क्लियरली ऑन कि हम किस तरह से उस 40 मिलियन की एटलीस्ट 70-75% ऑफ द टारगेट मार्केट पे पहुंचे. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी है, आपके पास आजकल तो डिजिटल बैंकिंग भी अवेलेबल है. तो पार्टनरिंग, पिछले साल हमारी कॉन्फ्रेंस थी AMC 9, उसमें आई थिंक एक बड़ी अच्छी बात की गई. डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह साहब ने की स्टेट बैंक. उन्होंने ये कहा कि आजकल का जो ज़माना है ना, वो साइलोज में अलग काम करने का नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी क्रिएट सिनर्जीज, हाउ डू वी वर्क टुगेदर विद द इकोसिस्टम प्लेयर्स. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट PMN विल ऑल्सो फोकस ऑन, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आर मेंबर्स विल ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन, कि किस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स के साथ काम करके, रादर देन डूइंग एवरीथिंग ऑन आवर ओन, हम फोकस कर सकते हैं ऑन अचीविंग ग्रोथ एंड स्केल. तो मेरे ख्याल से स्केल विल बी अ फंडामेंटल थिंग दैट वी नीड टू अचीव. एंड एज यू सेड कि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बीइंग सच अ बिग कंट्री विद 250 मिलियन पॉपुलेशन, so many people who are still not served by the traditional banking system. तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी opportunity है. What would you say to young people who are considering a career in microfinance, for example? Is it something that you would encourage them to do? इसमें prospects हैं for younger generation? जी बिल्कुल. So this is the, I think this is the future banking. So आप अगर कहें where the sector is moving is कि आप mass market के ऊपर जा रहे हैं, आप impact business के ऊपर जा रहे हैं. What we are doing is, and I am not disrespecting any other segment of the society. हर कोई अपनी niche देखता है और हर किसी का अपना vision, mission and objective है. So that's I'm focusing on my own sector. तो अगर आप देखें, so impact business करते हैं, तो हमारी जो investment होती है वो सिर्फ लोअर एंड ऑफ द मार्केट के साथ नहीं होती, वल्नरेबल सेगमेंट के साथ नहीं होती, बट होती है एरियाज लाइक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं. लाइक हम उन लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं जिनके पास हाउसिंग नहीं है, जो लोग या ऐसी छतों के नीचे रहते हैं जो छप्पड़ की होती हैं, तो हम उनको एक रीजनेबल वो छत दे रहे हैं उनके लिए. हमारी उन एजुकेशन सेगमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं जो लो कॉस्ट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, हिंटरलैंड ऑफ पाकिस्तान, रूरल कम्युनिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं. हम एग्रीकल्चर में स्मॉल होल्डर फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द वे दे आर डिफाइंड इन डिफरेंट प्रोविंसेस. आई थिंक पंजाब में 12.5 एकड़ से नीचे है, पंजाब एंड सिंध में, एंड आई थिंक KPK एंड बलूचिस्तान में 5 एकड़ से नीचे. हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ये वो लोग हैं जिनके के अंदर हम फूड सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे हैं, उनको हम पाकिस्तान की वैल्यू चेन के साथ लेके आ रहे हैं, जो पाकिस्तान का कैशलेस होने का आइडिया है उनके साथ लिंक कर रहे हैं. सो मैं और आप तो जो डिजिटल बैंकिंग है वो कन्वीनियंस के लिए लेते हैं ना, कि रादर देन मैं बैंक की, आई डोंट रिमेंबर कि मैं लास्ट कब बैंक ब्रांच में गया था, कब मैंने अपने बेटे या बेटी की फीस जाके पे की. ये सब अब मैं अपने मोबाइल ऐप से कर रहा हूँ. तो टेकिंग ऑल ऑफ दिस टू द मैस मार्केट, टू द लोअर एंड द पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज वेयर वी आर गोइंग. तो ये वो पाकिस्तान है जिसमें कि आई थिंक आपको स्केल भी मिलेगा, आपको इनोवेशन भी मिलेगी, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि आप लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं. तो आई थिंक, एंड देयर इज अ ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल, एंड बोथ द सेगमेंट्स ऑफ द सेक्टर आर रेगुलेटेड. एक SCCP से है, एक बैंकिंग से है. आपने अगर यानी इवन फ्रॉम यंग एज ग्रेजुएट करके निकलना है तो आप MFI MFB सेक्टर के साथ भी काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग से भी कर सकते हैं. इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी हमारी लिंकेजेस हैं, चाहे वो एजेंसी मॉडल के थ्रू हों. लेकिन यू विल डिजिटल बैंकिंग भी है इसके अंदर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी है, बिहेवियरल साइंस भी है. तो people who are
interested in becoming bankers for the poor or bankers with impact, I think this is the best place to come to. That's actually very, very true. So you can be a banker who makes a positive impact, not just one who's supposedly making money for either the bank or themselves. बड़ा अच्छा आपने ये जवाब दिया है, and thank you so much for sharing your insights about the sector and about the future for young people, especially in this sector. It's been a pleasure to have you on this podcast, The Boss. And Last comment. जी Can I give the last जी comment? absolutely, go तो ahead. मैं इसमें जी I would want to appreciate some of the institutions and players also. Like for example, मैं आपको बताऊँ, स्टेट बैंक ने जिस तरह से इस सेक्टर को सपोर्ट किया नीड्स टू बी हाईली एक्नॉलेज. उन्होंने जब 2001 में इसको लॉन्च किया और जिस तरह से हैंड होल्ड करके हमें आगे लेके आए हैं, नीड्स टू बी रियली वैल्यूड जी फॉर. यानी अगर किसी और मुल्क ने भी दुनिया में इसी तरह से काम करना है तो रेगुलेटर एंड द इंडस्ट्री हैज टू वर्क टुगेदर. Yes. SECP picked it up around 2015 and regulated the non-banking sector. उसको भी मेन स्ट्रीम किया इसमें. तो SECP has also been very helpful with us on this. जो उसके अलावा हमें गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिली है. यू नो बिटवीन 2000 and 9 कोई पाकिस्तान में 10 गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी हैं, बट गवर्नमेंट्स हैव बीन टॉकिंग टू द इंडस्ट्री. ये कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ लेके आया हो और वो इम्पोज कर दिया. हर गवर्नमेंट ने सेक्टर को इन्वॉल्व किया है और उसके अंदर उन्होंने डिस्कशन की है. PPAF का बहुत सपोर्ट रहा है सेक्टर में, इस सेक्टर को बिल्ड करने में, एंड देन PPAF ट्रांसफॉर्म इनटू PMIC, एंड सो दे आर वन ऑफ द लीड प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सेक्टर and also mainstreaming the non-banking sector with the banking sector. उनकी वो relationship build की है. So all of this, so it has been a teamwork where different players in the ecosystem has evolved and has worked together to build this sector. It's a good case study in how different organizations have collaboratively worked together to build this sector. अभी आपने जो बात की थी, and as we conclude, 1 trillion rupees you've got in deposits in your sector, which is quite an achievement. और इसके साथ साथ obviously there is the debt side as well. But we're talking about effectively giving the Pakistani economy a big boost. बिल्कुल. So thank you very much again. It was a pleasure to have you. And thank you for joining us for The Boss. I hope to see you next time. Until then, take care. Thank you. Pleasure.